کائنات ماہتابان رحمتا للعالمین کائنات ماہتابان رحمتا للعالمین جان کو تاجان جانان رحمتا للعالمین جان کو تاجان جانان رحمتا للعالمین کائنات ماہتابان رحمتا للعالمین یسن کے چھینا لآسان تسولان تنصور پائے یسن کے چھینا لآسان تسولان تنصور پائے ذاتی گرس ماچ باوان رحمتا للعالمین ذاتی گرس ماچ باوان رحمتا للعالمین جان کو تاجان جانان رحمتا للعالمین بچہتن کھیاوانت چاوان پان روزہ روزدار بچہتن کھیاوانت چاوان پان روزہ روزدار فاقگی ہند شخن باوان رحمتا للعالمین فاقگی ہند شخن باوان رحمتا للعالمین جان کو تاجان جانان رحمتا للعالمین کائنات ماہتابان رحمتا للعالمین جان کو تاجان جانان رحمتا للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ پروردگار عالم کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں، اور اس کے مقابل میں آخرت اور آخرت کی نعمتیں جو ہیں بے شمار ہیں جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والو کا سب سے بڑا احسان ہم سب کے اوپر یہ ہوا کہ اللہ نے بہت بڑی دولت سے ہم سب کو نوازا، اور یہ سب سے بڑی جو دولت ہے یہ دولت ایمان ہے۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس ایمان کے ساتھ منسلک جو چیزیں ہیں جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور بندی اور بندہ جس ذریعے سے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دیگر نعمتیں بھی پروردگار عالم کے بے شمار ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد جو ہے اعمال صالح ہو۔ اب یہ اعمال صالح جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علماء کرام کا بہت بڑا مجمع تھا، اور آپ نے علماء کرام کے عظیم مجمع کے اندر یہ خطاب فرمایا کہ آپ میں سے کس کے دل کی تمنا ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں وہ بتائیے آپ جی۔ بڑے بڑے وقت کے علماء تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی عمل ہمیں بتائیے کہ جس عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو آدمی بھی کسی عالم کے پاس جاتا ہے وہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے ایسا کوئی عمل بتایا جائے جس سے میرا تعلق اپنے رب سے اور جڑے۔ اب کوئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن پاک کے اتنے سپارے پڑھیں تو اللہ سے تعلق آپ کا جڑ جائے گا، اور بعض کہتے ہیں بھائی اتنا درود پاک پڑھیں آپ تو آپ کا تعلق اللہ سے خوب جڑ جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اتنا صدقہ خیرات آپ کریں جس سے پروردگار عالم کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے مضبوط ہو جائے گا۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک جو بھی عالم کسی کو کوئی عمل بتانے والے ہیں، تمام اعمال کا خلاصہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا عمل یہ ہے، آج میں سارے آپ علماء کرام کو وہ عمل دیتا ہوں، اور آپ ساری امت تک جتنا ہو سکے اس عمل کو پھیلاؤ۔ بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں، ہر کو خیال ہوا کہ آج تو سب سے بڑا کوئی عمل دیا جا رہا ہے جس عمل کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ حاصل ہوگا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج میں سب سے بڑا جو عمل آپ کو دیتا ہوں وہ عمل یہ ہے کہ آپ آج کے بعد یہ عہد کریں کہ آپ کسی کو ستائیں گے نہیں جی۔ ہمارے یہاں نا تسبیحات فلانی چیزیں یہ ٹھیک ہے وہ تو پڑھیں آپ، ایک آدمی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو ستا رہا ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ سب سے بڑا عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کسی کو ستائیں، ورنہ اعمال تو بہت سارے ہیں۔ اس وقت جو ہم سارے کے سارے بیٹھے ہیں وہ اسی وجہ سے تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم ایسے اعمال کریں جن اعمال کے ذریعے سے ہمارا تعلق ہمارے رب سے جڑ جائے، اور ہم سارے کے سارے خود نہیں آئے ہیں، اس پروردگار عالم نے ہم سب کو خود بلایا ہے، اپنی مرضی سے ہم نہیں آئے، اور اپنی مرضی سے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ذرے ذرے پہ قادر ہے۔ تو جس پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنے گھر میں بلایا ہے، آخر ہمیں خیر کی امید رکھنی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے۔ اس پروردگار عالم سے نا امید تو ہمیں ہونا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ ہم لیں کہ پورا سال جو ہمارے 11 ماہ جو گزرتے ہیں وہ ہمارے کس حال میں گزرتے ہیں؟ 11 مہینے کے اندر کیا ہماری زبان قابو میں رہتی ہے؟ کیا ایسا کوئی جملہ ہم کسی کو تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے دل آزاری ہو رہی ہے جی؟ یا ہمارے قول و فعل کے اندر کوئی تضاد تو نہیں ہے جی؟
आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास खजाने भी मौजूद हैं, सोने के कांधे भी मौजूद हैं, तेल के ज़ख़ायर भी मौजूद हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया में आए सबसे अगर बुज़दिल अगर कोई कौम है वो हम हैं। और एक वो दौर था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा किराम, जिनको शाम के वक़्त में रोज़ा इफ्तार करने के वक़्त के अंदर भी एक या दो खजूरों के अलावा कुछ और नहीं मिलता था। हमारे तो दस्तरखान बड़े होते। अल्लाह हमारी नेमतों में और इजाफा करे। सहाबा किराम के यहाँ 2 खजूरें 3 खजूरें, उससे ज़्यादा खजूरें भी नहीं होती थी इफ्तार के वक़्त के अंदर। बाज बेचारे जो पानी पिया करते थे इफ्तार के वक़्त के अंदर, आधी रेत होती थी और आधा पानी होता था, उसको पीकर भी जो है ताजुद की नमाज में भी वो खड़े हैं, तरावी की नमाज ही पढ़ रहे हैं, अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं। और हमारे यहाँ तो दुआ का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। हमने एक ही दुआ याद रखी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। दुआ असल में उसे कहते हैं कि दुआ ये है कि सबसे पहले आप अपने रब की खूब तारीफ बयान करें। ये अल्लाह, आसमान का मालिक तू है, ज़मीन का मालिक तू है, हर शे का मालिक तू है। अल्लाह की खूब तारीफें बयान की जाए, हर चीज़ का मालिक तू ही है। उसके बाद फिर अपनी जितनी बातें हैं, जितनी चीज़ें हैं, रब से तलबगार हैं, जिन चीज़ों के बारे में सब कुछ मांगिए। यह है दुआ। और बाज़ दुआएं होती हैं जो किताबों में रटी हुई होती है ना, हमने वहाँ से रटी, हिफ्ज़ याद की, वो दुआ मांगना हम शुरू कर देते हैं। उसको दुआ मांगना नहीं कहते हैं, उसको दुआ पढ़ना कहते हैं। पढ़ने वाली दुआ और होती है और मांगने वाली दुआ ये और होती है। और जिस वक्त इंसान के आमाल अच्छे हो जाते हैं, परवरदिगारे आलम सबसे बड़ा इनाम बंदी और बंदे को ये देते हैं कि परवरदिगारे आलम उसको फरासत से नवाज देते हैं। लेकिन सबसे पहले ईमान, ईमान के साथ आमाल साले। आमाल साले में वो सारी चीज़ें हैं, ज़कात भी है, हज भी है, रमज़ान मुबारक के रोज़े भी है, ताक़रातें भी है, इसमें इत्काफ़ में बैठना भी है, और सदका और खैरात भी है। यानी वो सारे के सारी चीज़ें वो आमाल साले में आती है। और आमाल साले जब ये इंसान करता है तो ये अल्लाह से डरने वाला बन जाता है, और जब ये अल्लाह से डरने वाला बन जाता है अल्लाह इसको फरासत अता करते हैं। हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के फरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन जो है वो अल्लाह के नूर से रहता है। लेकिन शर्त असल में क्या है कि आप मोमिन अल्लाह के नूर से देता है, कि शर्त यह है कि मोमिन तो हो। अवल शर्त तो यही है, जब ये मोमिन होगा तो अल्लाह के नूर से देखेगा। लेकिन अगर ये मोमिन ही नहीं है, ये अपने आप को नहीं देख सकता है, ये दूसरी चीज को कैसे देख पाएगा। इसलिए हमें कहा गया, वला ताहीनो, हिम्मत मत हारना, वला तहज़नो, रंजीदा मत होना, गमज़दा मत होना, वअन तुमुल आलौना, तुम ही गालिब होकर रहोगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। लेकिन आखिर में शर्त तो यही है, गालिब तो तुम ही होकर रहोगे, लेकिन शर्त यही है कि तुम मोमिन हो। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। वहां भी है कि कसम है ज़माने की, इंसान सरासर खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। मगर वो लोग जो हैं नुकसान भी नहीं हैं, घाटे में भी नहीं हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है। कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने ईमान लाया, व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने अच्छे अमाल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, हक बात पर जमे भी रहे, हक बात की तलकीन करते रहे, और जो हालात आए उस पर सब्र भी किया। लेकिन इस वक्त न तो हमारे अंदर सब्र है, न हमारे वो अमाल साले हैं। अमेरिका हमें पीस रहा है, इसराइल हमें पीस रहा है, एक जिस्म पूरे को आग लगी हुई है, लेकिन आज सारे ईमान वालों का टस से मस भी नहीं है, किसी को खबर भी नहीं है। खबर है, सबको पता है इस चीज के बारे में, लेकिन कौन है कि लब कुशाई करे, इसलिए कि वो ईमान वाले नहीं रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी हैं, रोम के बादशाह के बाद जिस वक्त आप दाखिल हुए हैं, उन लोगों ने बाहर रोका,
जैसे आप किसी बड़े से मिलने के लिए जाएं, वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर किसी बड़े से मिलाया जाता है। उन लोगों ने ऐसा किया कि वजीर ने जो है उनको वहां पर बिठाया और बिठाने के बाद फिर कहा जी अब जो आपको बादशाह के पास जाना है, लेकिन सवाल ये है, दो चीजें आपको करनी है। एक, जिन कपड़ों में आप आए हैं वो कपड़े बदलने हैं, और दूसरा जो सवारी आपकी है वो सवारी बदलनी है। एक कपड़े बदलने हैं और दूसरा सवारी बदलनी है। और सवारी जो आपको इस्तेमाल करनी है वो तुर्की सवारी है, घोड़े हैं, जीनें उनके ऊपर पड़ी हुई हैं, और अच्छा लिबास पहनकर जो है आप जाएंगे। साहबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाए, आपने फरमाया ये दोनों शर्तें हमें मंजूर नहीं है। किसके सामने कह रहे हैं? अमेरिका के सामने। यानी आज की सुपर पावर, उस वक्त की जो सुपर पावर है, आज उसके सामने, ये समझिए आप, ट्रंप के सामने ये कह रहे हैं, ट्रंप के एलची के सामने कह रहे हैं कि भाई हमें उनसे मिलना है, आपकी शर्तें हरगिज नहीं मानी जाएंगी, आपको हमारी शर्त माननी है। कि भाई आपकी शर्त क्या है? कि हमारी शर्त यह है, जिस लिबास से मदीना मनवरा से हम चले हैं यहां, इसी लिबास में, और जो सवारियां हमारी है इन्हीं सवारियों के जरिए से हम वहां पहुंचेंगे। उन्होंने बादशाह को भी पैगाम भेजा, ये लोग ऐसे हैं, ये मानते नहीं हैं, मनवाते हैं। ये मान ही रहे हैं, ये मनवा रहे हैं। बादशाह ने कहा अगर नहीं मानते हैं तो आप उनसे को आ जाएं, सवारियां अपनी, लिबास वही पुराना फटा। वहां जैसे जाकर पहुंचे हैं तो बादशाह ने कहा कि सबसे पहले मेरे यहां कोई आता है दरबार में, वो आकर सबसे पहले गर्दन झुकाता है, वो सजदा करता है। आपने न गर्दन झुकाई और न सजदा किया। उन्होंने कहा हमारे नबी ने किस मखलूक के सामने सजदा करने से हमें मना किया है। फिर आगे बड़ी लंबी बहस चली। वक्त के सुपर पावर ये पूछती है आप आए क्यों? उन्होंने कहा हम इसलिए आए हैं आपको कलमे की दावत देने के लिए, आप इस दावत को कबूल कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। आज हम सारे मिलकर भी ट्रंप से कह सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। आप नेतन्याहू से कह सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। इतनी कसरत में होकर भी हमारी हालत जो है ऐसी हो चुकी है कि दुनिया में ज़लील व ख़ार हो चुके हैं। बड़े बड़े बंगलों से, और आप सारे मुल्क, किसी मुल्क के जो हैं वजीर बन जाएं, सफीर बन जाएं, सदर बन जाए, उससे लोग, दुश्मन आपसे नहीं घबराएगा। दुश्मन घबराएगा आपकी अंदर की ताकत से, और अंदर की ताकत ईमान से बनती है और अमाले साले से बनती है। अब अमाले साले में क्या है? अमाले साले के अंदर इत्काद भी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने भी एक लम्हे का भी एतकाफ अगर किया, थोड़ी देर के लिए, यानी जो शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ उसने ये दुआ पढ़ दी, बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतकाफ, और जब तक वो मस्जिद के अंदर रहा तब तक एक एतकाफ की हालत में है वो, इसको भी एतकाफ का सवाब मिलता है, ये भी एतकाफ है। और 10 दिन का एतकाफ कर रहे हैं, इसकी तो इतनी फजीलत है कि इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के अंदर ये एतकाफ में बैठे हैं। एक शख्स है, आकर देखा उनको गमज़दा, बड़े परेशान हाल नजर आते हैं। आपने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा जी फलां का मेरे ऊपर हक है। उन्होंने कहा कि मैं इशारा किया कब्र अतहर की तरफ, क्या मैं आपकी सिफारिश इनसे कर दूं? उन्होंने कहा जी कर दीजिए आप। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु वहां से उठे हैं, ये शख्स भी जा रहा है। इसने कहा ए इब्ने अब्बास, शायद मेरे ख्याल से आप भूल चुके हैं, आप तो एक एतकाफ की हालत में थे, आप तो मस्जिद से बाहर जा रहे हैं आप जी। उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब आगे से ये दिया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अभी कोई ज़माना भी ज़्यादा नहीं गुजरा, कम ही वक्त गुजरा है, जो शख्स भी अपने किसी भाई के किसी काम के लिए निकल जाए, अल्लाह उसको 10 साल के एतकाफ का सवाब देते हैं। और एक दिन का एतकाफ भी इतना है, एक दिन का कोई अगर एतकाफ करे उसकी फजीलत यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परवरदिगारे आलम उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें बना देते हैं, और एक खंदक की मुसाफत जमीन से लेकर आसमान तक है। और फिर जो 10 दिन का एतकाफ करे तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, कितना सवाब मिलेगा? हाँ, यहां पर इस मसले को याद रखें आप,
ہو سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ یہ والا اعتکاف نہیں تھا، وہ نفلی ہو سکتا ہے جی، کیونکہ اس اعتکاف کے اندر تو پابندی بھی ہے نا. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جب آپ کا جی کرے تو آپ حمام پر بھی چلے جائیں بیٹھیں. حمام مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہ مسجد کے حصے سے باہر ہے. اور اگر غلطی سے انسان یعنی جان بوجھ کر انسان اگر وہاں پر چلا جائے بغیر ضرورت کے بار بار جو ہے جائے بار بار جائے تو یاد رکھو اس شخص کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے جی، یا تو پابندی ہے. تو اعتکاف کرنا بھی اعمال صالح میں سے ہے، نماز پڑھنا بھی اعمال صالح میں سے ہے، اور صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کرنا یہ بھی اعمال صالح میں سے ہے. کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا رحیم ہے وہ اللہ. ابھی اندازہ کریں آپ میں سے کوئی شخص اگر عمرہ کرنے چلا جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں پر جانا آپ سب کا قبول فرمائے، گنبد خضرا کی بھی زیارت اللہ نصیب فرمائے، اپنے گھر کے بھی زیارت نصیب فرمائے. حرم شریف میں آپ جائیں گے، ایک نماز پڑھیں گے، کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے جی؟ زور سے بولیں، ڈر تو نہیں لگ رہی ہے؟ 1,00,000 کتنے کا؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور آپ نے اگر 5 نمازیں پڑھی کتنی نمازوں کا ثواب ہو گیا؟ 5,00,000. اور آپ نے اگر 10 دن وہاں پر نمازیں پڑھی کتنے ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ نہیں 10 دن آپ نے وہاں نمازیں پڑھی تو 5-5 لاکھ کے حساب سے کتنا ہو گیا؟ کتنا جی؟ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے زندگی کے اندر اگر کسی کو 4 عمریں بھی نصیب ہو جائیں کتنی نمازیں ہوگی؟ ڈریے مت، کھل کے بولیے، آئی تو حساب کر دینا ہے نا. کتنا ہو گیا؟ اب یہ ہو گئی. اس کے بعد ہمارے لیے دوسری فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کا جو وقت آتا ہے، افطار کے وقت کے اندر اللہ کی طرف سے ایک منادی کو اعلان کروایا جاتا ہے کہ اعلان کرو کہ آج افطار کے وقت کے اندر میں نے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے جی، ایک دن. اور روزانہ یہ اعلان 1 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک چلتا رہتا ہے جی. اور 29 رمضان کو یہ کہا جاتا ہے آج یہ اعلان کرو کہ جتنا 1 رمضان سے لے کر آج 29 رمضان تک لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا، اتنا صرف آج کی رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا. یعنی حساب و کتاب کے اعتبار سے یہ ہوا 1 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک روزانہ 10 لاکھ لوگ جو جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، تو 29 رمضان تک کے کتنے بنے؟ 2,90,00,000. اور اتنے ہی لوگ ایک دن کے اندر آزاد ہوتے ہیں، تو 2,90,00,000 اور 2,90,00,000 کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اتنے ایمان والے مرتے ہوں گے سال میں، اتنے مرتے ہوں گے. اللہ کی طرف سے بانے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے جی. اچھا رمضان المبارک کے اندر ایک سنت کا آپ ایک سنت کر رہے ہیں، وہ فرض میں تبدیل ہو رہا ہے. ایک فرض پڑھتے ہیں آپ، فرض نماز آپ نے ایک پڑھی تو 70 فرضوں کا ثواب ملا آپ کو جی. یہ اللہ کی طرف سے بانے ہیں. لیکن اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ ممبر کے اوپر آپ تشریف لے گئے تو آپ فرما رہے ہیں آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین. صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں اور اصل میں سوال پوچھنے والے تھے، وہ تو حریص تھے دین کے. انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. آپ نے پہلے ممبر پہ پیر رکھا آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین، تیسرے پہ رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین. لیکن ہمارے سبھی میں نہیں آیا تو آپ نے آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے تھے، جبرائیل آمین نے بددعا دی ہے، میں نے آمین کہا. اب بددعا دینے والے کون ہیں؟ سارے ملائکہ کے سردار. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء کے سردار. جبرائیل آمین بددعا دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آمین نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ یا 2 میں سے ایک زندہ ہو، وہ ان کی خدمت کر کے جو ہیں اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا لے. جبرائیل آمین نے بددعا دی اور میں نے اس پر آمین کہا. اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آمین نے کہا تباہ ہو جائے وہ شخص
کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہ پڑے وہ تباہ ہو جائے. میں نے کہا آمین. اور جب تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل آمین نے کہا کہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. وہ اس وجہ سے کہا کہ رمضان مبارک کے اندر تو آج ایک سیزن ہے، جیسے ہمارے یہاں کاروبار کرنے والوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو آج اصل میں مومنوں کا سیزن ہے کہ اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ پڑھ رہا ہے 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ رہا ہے 70 مرتبہ کہنے کا ثواب مل رہا ہے. بلکہ بعض حدیث کے اندر تو ہزاروں کروڑوں میں بھی آیا ہے، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے. تو تیسرا فرمایا اللہ سے تعلق ہونے کے لیے کہ آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ جڑ جائے، وہ صدقے اور خیرات کے ذریعے سے بھی جڑتا ہے. آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، آپ کا تعلق اپنے رب سے جڑے گا. تھوڑا سا کریں آپ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، وہ پیاسا تھا، آپ نے پانی پلا دیا، وہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کسی کو کپڑا پہنا دیا، وہ بھی صدقہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھنے میں یہ اعمال بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان اعمال کا مقام بہت بڑا ہے. ایک ظالم بادشاہ کے بارے میں آپ نے سنا کتنا ظلم ستم کیا تھا. راستے میں چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کو خارش ہے اور پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے. اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ ایک کام کرو، اس کتے کو ساتھ اٹھاؤ لے جاؤ، اور جس وقت میں آپ سے کہوں گا میں واپس آ جاؤں تو اس کتے کو جو ہے میرے پاس لے کے آ جائیں. اور جاتے ہی اس کی خدمت یہ کریں کہ سب سے پہلے اس کتے کو پانی پلائیں، اسے کھلائیں، اور ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کے لیے گرمی کا انتظام کریں. اسے کھلایا بھی، اسے پلایا بھی، اس کے لیے گرمی کا انتظام بھی کیا. وزیر سے کہا کہ کسی کو بلاؤ، اس کو تیل کی مالش بھی کریں. تیل کی مالش بھی کی. چند دنوں کے بعد ایسا ہوتا ہے اس کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ کتے کا نہیں، بادشاہ کا انتقال ہو گیا. کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا بنا؟ اس نے کہا میرے ظلم کو اگر دیکھیں گے پھر تو بخشش کی کوئی صورت نہیں تھی. پروردگار عالم نے یوں فرمایا کہ آپ کے کام روئے زمین پہ اس کتے سے بھی ذرا سخت تھے، اور آخر میں نے کتا ہی حوالے کیا آپ کی خدمت کے لیے. آپ نے میری مخلوق کے اوپر کرم کیا ہے، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. وہ اللہ کتنا کریم ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو گرمی دینا، اس کی وجہ سے اللہ نے ایک ظالم بادشاہ کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا. مجھے بتائیں اگر مومن کی خدمت کرے یا کسی انسان کی آپ خدمت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ کیا جنت نہیں ملے گی؟ اس لیے اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں سے آپ دیں گے تو یہ صدقہ ہے. ایک انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں کھجور کھا رہا ہوں، اتنے بھی دوسرے صحابی آئے تو آدھی کھجور میں نے کھائی تھی، انہوں نے مجھے آواز دی کہ آدھی میں فاقے سے ہوں، آدھی کھجور مجھے دے دو. کہتے ہیں آدھی کھجور میں نے ان کے حوالے کی، انہوں نے آدھی کھجور کھائی، مجھے دعائیں دی. اور اس کے بعد یہ انصاری صحابی کچھ دنوں کے بعد جب یہ بیمار ہو گئے ہیں تو دنیا سے جانے کا وقت آیا، انہوں نے وصیت کی، یہ کہنے لگے میرے پیچھے جتنا بھی مال ہے وہ سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا. اور یہ بڑے والا گودام ہے جس میں سامان رکھا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا. گھر والوں نے وصیت کے اعتبار سے کر دیا. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد وصیت کے اعتبار سے صدقہ بھی ہو گیا. دوسری ایک صحابی ہیں، انہوں نے ان صحابی کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا بنا. کہنے لگے جو آدھی کھجور میں نے اپنے ہاتھ سے جو میں نے دی تھی، جتنی جنت اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے دی ہے، اور پیچھے جو صدقہ کیا گیا اس کا تو کوئی یہی نہیں، بالکل چھوٹا سا کونا ملا ہے. وہ کیوں؟ کہ اپنے ہاتھ سے آپ نے جو دیا وہ آپ کا ہے. مرنے کے بعد جو آپ نے وصیت کی ہے وہ آپ نے اپنے حصے میں سے نہیں کی ہے، وہ مرنے کے بعد تو حصہ پھر دوسروں کا بن جاتا ہے نا، وہ آپ نے کسی اور کے حصے میں سے تقسیم کی ہے اور اپنے ہاتھ سے نہ دیا. جس نے دیا پیچھے سے دیا ہے تو اصل پھل تو تب ملے گا جب آپ نے اپنے ہاتھ ہی سے اپنی آخر کی کمائی کے لیے کچھ کر دیا ہے، آخر میں آپ نے بیچ دیا. تو صدقے اور خیرات کے ذریعے سے بھی مومن کے اندر فراست پیدا ہو جاتی ہے. رمضان مبارک کے روزوں کے ذریعے سے بھی مومن کے اندر جو ہے فراست پیدا ہو جاتی ہے.
اب اس ساری دنیا کے اندر ہماری حالت ایسی ابتر بن چکی ہے کہ یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے اندر خود بھی اس چیز کا سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اور اطمینان اس لیے نہیں ہے کہ جن اعمال کے ذریعے سے دلوں میں سکون آتا ہے وہ اعمال ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے. رمضان مبارک کے یہ چند ایام آتے ہیں، خاص کر کے تاخر آتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. وہ اللہ زبردستی ہمیں اپنے گھروں سے نکال کے بنا کے اپنے گھر میں لاتا ہے، ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا دیتا ہے. باقی آنے کے لیے تو ہم بھی تیار نہیں ہے نا. ابھی بھی دیکھیں کیا اس بستی کے اندر صرف اتنے لوگ ہیں جتنے تاخرات میں ابھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا جو گھر میں ہیں وہ عبادت نہیں کرتے ہوں گے، کرتے ہوں گے. اب اس کو چھوڑیے، آپ دین کا کوئی معاملہ بھی دیکھیے. آپ ہمارے یہاں سب سے بڑی تعداد اس میں زیادہ ہوتی ہے یا خرافات میں زیادہ ہوتی ہے؟ باقی جو خرافات ہوں گے، باقی چیزیں ہوں گی، اس میں تو سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے. اور دین کے کام کے لیے اگر صبح شام بھی آپ اعلان کرتے رہیں گے، پھر بھی آنے والے وہی آئیں گے جن کے اللہ چاہے گا، وارد نہیں آتا ہے. اور جہاں نہ جانا ہو وہاں بغیر اعلان کے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہاں جمع ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں یہی ہے. اصل وہ ایمان نہ بنا، اعمال صالح نہ بنے. اعمال صالح تو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. جب اعمال صالح نہ بنے، ایمان اسی حال میں رہا جو زبان تک محدود رہا، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ رحم فرمائے پھر یہ ایمان بھی انسان سے چھینا جاتا ہے. یہ ایمان بھی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. ایمان کی ترقی کا ذریعہ اعمال صالح ہیں. آپ اپنے نمازوں کے اندر جان پیدا کریں، نماز ایسی پڑھیں، ایسے دل کھول کے نماز پڑھیں، اس انداز سے نماز پڑھیں آپ کہ بس میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں. راستے میں چلیں، تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کریں آپ. اور جب آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گے، آج آپ کو جس دشمن کا خوف ہے، یاد رکھو وہ خوف کا آپ کے اندر سے نکل جائے گا. دشمن میں خوف پڑے گا، آپ کے اعمال کا اثر اس کے اوپر پڑے گا، لیکن اس کی طاقت کا اثر آپ کے اوپر نہیں پڑے گا. آج ہماری حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ آج دشمن کا خوف جو ہے وہ ہمارے اوپر طاری ہو چکا ہے. تو صحابہ کرام کے اوپر کبھی ایسا واقعہ سنا آپ نے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سنا ایسا؟ دعائیں ایسی تھی، اعمال تھے، اعمال صالح تھے، اور جس وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اللہ کی مدد آتی تھی. لیکن آج ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں رہی ہیں. وہ چیزیں ساری ہماری ختم ہو گئی. اور یہ بھی دیکھیں آپ، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان لوگوں کے اندر ایک درد و غم تھا اس قوم کا، اس امت کا. ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی ہماری جان رہے یا نہ رہے، لیکن جو اللہ نے جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک ہمیں پہنچانا ہے. عبد الرحمن بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کشمیر میں تشریف لائے. سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی دیکھیں آپ، سب سے پہلے آ کر جہلم کے کنارے جو چٹان تھی اس کے اوپر کشمیر میں سب سے پہلے فجر کی اذان اس اللہ کے بندے نے دی ہے. کفرستان تھا، مندروں کے اندر جو ہیں وہ گھنٹیاں بج رہی تھی، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ درد و غم تھا، ان کے اندر ایسا درد تھا. وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ بھی کیا کروں. ساری رات تہجد کی نماز میں کتنے آنسو اللہ کے بندے نے بہائے ہوں گے. اور صبح کا ارادہ یہ ہے، رات کو اللہ کو منوا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. یہ اللہ صبح مجھے بادشاہ کے پاس، وقت کے بادشاہ کے پاس جانا ہے، یا اللہ جب میں اس کے پاس جاؤں تو اس کے دل کو نرم کر دینا آپ. اور یہ پتا تھا دو چیزیں ہیں، یا تو مہمان خانہ ہے یا پھر جیل خانہ ہے. بادشاہ یا مہمان خانے میں رکھے گا. اچھا، نظام بھی اللہ کا عجیب ہے کہ یہاں تو ہم کشمیر کے اندر سارے کے سارے پنڈت ہیں، لیکن ان کا اصل میں جو بادشاہ تھا وہ بدھ مذہب کا تھا. لیکن اللہ کا کرنا، جب یہ اللہ والے جب اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان کو دعوت دی، دعوت کا پیغام پہنچایا. اور اندر تھا مومن کی فراست تھی، یہ اللہ کے بندے کہاں سے کہاں آئے، فراست سے پہچان لیا کہ اگر میں ایک ایک کے پاس جاؤں گا مجھے وقت لگے گا، تو بہتر ہے کہ بادشاہ کو پکڑا جائے، بادشاہ سے بات کی جائے. بادشاہ سے جا کر بات کی، اور جیسے بادشاہ سے بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا چلا ہے کہ بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا. اور بادشاہ نے پھر کہا عبد الرحمن بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اگر آپ یہ کہتے ہیں میں اعلان کر دیتا ہوں میری ایک آواز پر سارے لوگ اسلام لے آئیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسا اسلام نہیں چاہتا، زبردستی والا اسلام نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں
जबरदस्ती नहीं है। और अगर आप ये करेंगे तो याद रखो आने वाले वक्त के अंदर तारीख में लिखा जाएगा कि कश्मीर के अंदर लोगों ने इस्लाम बादशाह के डर की वजह से कबूल किया। मैं इस वजह से नहीं है, बल्कि मैं लोगों को जाकर उनको बताऊंगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है, दीन इस्लाम क्या कहता है। ये लोगों में आपको दीन इस्लाम बताने के लिए आया हो, जिस चीज का दिल चाहेगा वो इस्लाम कबूल करेगा। जाकर जब आपने दावत दी है तो अल्लाह का करम है हम सारे ईमान की हालत में आज बैठे हैं। लेकिन जिन लोगों ने माना नहीं, उनकी हालत क्या बने? हम क्या इंतजार में रहते हैं कि आसमान फटे और हमारे ऊपर गिरे? उस वक्त हम बाज आएंगे, बेदार हो जाएंगे हम। क्या हम उस इंतजार के अंदर हैं कि जमीन फट जाए और उसके बाद जाकर जो है हम बेदार हो जाएंगे? जमीन फटी है कश्मीर की इससे पहले भी। ये झीले बुजुर्ग जो है, जो हम सारे के सारे झीले बुजुर्ग को देखते हैं, पानी वानी यहां कुछ नहीं, जैसे आम खुशकी जैसे हमारे यहां वैसे इसके अंदर खुशकी थी। आम जैसे बांडीपुरा के इलाके के अंदर जैसे खुशकी है, जिले बुदर के अंदर भी खुशकी थी, बहुत बड़ी आबादी थी वहां। और सारे कश्मीर के जितने गलत काम हैं वहीं किए जाते थे और जुल्म के मशवरे वहां होते थे, सारे खिलाफात वहां होते थे। बताने वालों ने बताया है कि सुधार में आओ, जब नहीं आए तो परवरदिगार आलम का निजाम ऐसा चला। कौम आद के बारे में हमने सुना है, कौम लूत के बारे में हमने सुना है, कौम शुएब के बारे में हमने सुना है, लेकिन यह तारीख भी हमें याद रखनी चाहिए। हमारे कश्मीर की इस सरजमीन पे, इस टुकड़े पे जब गलत होने लगा, जिस पर ये जमीन के ऊपर खराफात के अलावा और कुछ नहीं था, अल्लाह ने वहां पर जमीन को फटा दिया और ये पानी के बुलबुले उठने लगे, जो आज तक जो है उस बुलबुले पानी के मौजूद है वहां। ये झीले बुजुर्ग जो है, ये वही पानी तो है सारे का सारा। अजाब आया और ये हालत बन गई। और यहां तक कि आज भी वहां पर मिट्टी के बर्तन वहां से निकलते हैं जी। वो शिकारे वाले जब चलते हैं वहां, कई सारी चीजें जो हैं वहां से नमदार होती हैं, आज भी जाहिर होती हैं जी। उनकी निशानियां आज भी निकल रही हैं। तो क्या जो अल्लाह झीले बुजुर्ग की जगह को ऐसा कर सकता है? सारी जमीन तो उसके लिए बराबर है ना। तो ये अल्लाह निशानियां हमें दिखा रहा है। ए मेरे बंदो, याद रखो आप, जिस जगह मैं सख्त जमीन पर चट्टानों को हिलाने वाला हूं, जब मैं चट्टानों को हिला देता हूं तो मेरे लिए मुश्किल यही है, जहां चाहूंगा जमीन को फटाऊंगा और पानी के फवारे निकलेंगे और सारे खत्म हो जाएंगे। हवा चलाऊंगा, मैं नाराज होकर भी कुछ भी कर सकता हूं। फ़ाअलुल लिमा युरीद, जो चाहें कर ले। इसलिए हम किस चीज के इंतजार में? मेरे नौजवानों, आती जवानियों को हम ज़ाया करने वाले ना बने। इस वक्त हम सबका बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह हमारे ईमान के बारे में हमसे पूछेगा। कश्मीर के एक एक फर्द के बारे में हमसे पूछा जाएगा। हमारे बुजुर्ग वहां से आए, कुफरस्तान में घंटियां बज रही हैं मंदिरों के अंदर, यहां आकर उन्हें दावत किया, बेखौफ होकर, उसमें दर्द था, गम था, अल्लाह ने उनके दावत को फैला दिया। अब ये बताइए, उन्होंने इतना सारा कारनामा किया, हम में से कोई ऐसा है जिसने ये कारनामा आज तक किया हो? एक भी किसी गैर ईमान वाले को दावत दे के इस्लाम में दाखिल किया हो? अल्लाह हमसे पूछेगा ना। और हमारे अंदर हिम्मत नहीं, तरह तरह के ख्यालात आते हैं, पता नहीं ये करेंगे वो हो जाएगा। वो इस वजह से है कि ईमान तो है लेकिन अमाल सालेह नहीं है। अमाल सालेह ना होने की वजह से हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, जिस वजह से खौफ दहशत है हमारे दिल के अंदर, हम आगे नहीं बढ़ते। फलस्तीन वालों का कत्लेआम हो रहा है, कौन ईमान वाला है जो खड़ा होकर आवाज दे रहा है? कोई भी नहीं है। मजम्मतें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। इससे अगर ये कहेंगे कि हम बरी जिम्मा हो जाएंगे दो जुमले बोल के, इससे कोई बरी जिम्मा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने जो ताकत आपको दी है वो ताकत को सर्व करें, जो माल अल्लाह ने दिया है उस माल को सर्व करें, और जो सलाहियत अल्लाह ने दी है उस सलाहियत को उसको खर्च करें आप। इसके बारे में आपसे सवाल होगा, पूछा जाएगा जी। जवानी के बारे में सवाल होगा, माल के बारे में सवाल होगा, वक्त के बारे में सवाल होगा, औलाद के बारे में सवाल होगा कि ये बताएं आपने जान कहां खर्च की, जवानी को कहां खर्च किया, माल को कहां खर्च किया है। तो इन तमाम चीजों के जरिए से जो अमाल हम करते हैं, इस अमाल के जरिए से अल्लाह फरासत मोमिना अता करता है। जब वो चीज मिल गई फिर अल्लाह की मदद भी आती है। इस वक्त गिड़गिड़ा के हम सारे के सारे मांगते भी हैं। 10-10 लाख का मजमा हमारा जमा होता है, हरम के अंदर दुआएं मांगते हैं, लेकिन कबूल ही नहीं हो रही हैं। रोजे मुबारक के सामने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी जा रही हैं, कबूल ही नहीं हो रही हैं।
इफ्तार के वक्त के अंदर दुआएं मांगी जाती है, कबूल ही नहीं हो रही हैं। सारा दिन रोजे की हालत में रहकर जो है दुआएं मांगी जाती हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही है। वो बात क्या है? देखिए, आप फलस्तीन वालों को छोड़िए, आप, मेरा यकीन है उनकी आजमाइश की घड़ी का जो इम्तिहान जो उनका चल रहा है, अल्लाह उनको सुरखरू करेगा जी, वो कामयाब होकर रहेंगे। मसला फलस्तीन वालों का नहीं है, मसला हमारा है। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? मैं और आप कर भी कह सकते हैं, हम तो जरा जरा दुआ मांगेंगे और क्या करेंगे। अल्लाह ने जिन ईमान वालों को ताकत दी है, वो अपना हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी, वो ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? हमारी तो दुआएं हैं उन बेचारों के साथ, और क्या है। उनके गम के साथ हमारा भी गम है, उनके आंसू के साथ हमारे भी थोड़े से आंसू हैं। दुआएं हम भी उनके लिए मांगते हैं और हम बेचारों के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुबारक है ऐसी कौम के लिए जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर ताकत को जो है उनको भी हिला के रख दिया। इसराइल जो उसका दबदबा सारी दुनिया के अंदर था, उसको भी हिला के रख दिया। ये आम बमबारी करके आप चले जाते हैं, मासूमों को मारे, आप किसी पहलवान से टकरा के, हमास से टकरा के देखो, उनके आमने सामने आए, किसकी हिम्मत है जी? ये तो देख लिया, अल्लाह ने ये नजारा दिखा दिया है। आपके सीने में अगर वो ईमान हो जो हमारे साले के साथ होगा, यानी सदका और खैरात के जरिए से भी हो, तहज्जुद की नमाज के जरिए से भी हो, पंज वक्ता नमाज के जरिए से भी हो, रोजों के जरिए से भी हो, गरम गरम आंसू बहाने के जरिए से भी हो, फिर जिस वक्त आप दुश्मन के सामने जाएंगे, याद रखो दुश्मन की ताकत नहीं है कि वो आपका चेहरा देखे। अगर चेहरा देखेगा तो वो बेहोश हो जाएगा जी। ऐसा तो हुआ, अल्लाह ने करके दिखाया जी, और अल्लाह दिखा भी रहा है। फलस्तीन वालों के पास है क्या? बेचारों के पास, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने करके दिखा दी है बड़ी ताकतें इतने अरसे से। जो ये कह रहे थे कि हम तो इन मुसलमानों को एकदम अभी शुरू करेंगे, 1 घंटे में सारे फलस्तीन को खत्म करके मस्जिद अक्सा पे कब्जा करेंगे जी, नहीं, उनमें कोई ऐसे ईमान वाले तो हैं, ईमान वाले हैं, उनके ईमान का बड़ा जोर है, बड़ी ताकत है। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह अगर के, उनके एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की वजह से दुश्मन जो है ये ढेर हो जाते हैं जी। देखो, सारा जिम्मे मस्जिद अक्सा का जिम्मा उन्हीं की जिम्मेदारी थोड़ी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया में हर कोने में बैठने वाला वजीर हो, सफीर हो, गरीब हो, अमीर हो, ताजिर हो, हर ईमान वाले के जिम्मे यह है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना आपके जिम्मे है। जैसे हरमैन शरीफैन की हिफाजत हर मोमिन के मोमिना के जिम्मे है, और वैसे ही मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना हर मोमिन के जिम्मे है। आप कैसे करें? आप इरादा ये करें कि अल्लाह, अगर हम नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन हमारे अंदर पक्का यकीन है, और यकीन के साथ अल्लाह हम ये कहते हैं, आपको गवाह बनाकर कहते हैं, ये अल्लाह अगर तू हमें ताकत दे दे, हम इस काम के लिए तैयार हैं। तो मेरे बुजुर्गों, फरासत मोमिन को कहां से आती है? आमाल के जरिए से। अब अमाल क्या है जी? बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ ये है कि वो पुराने अमाल को छोड़े हैं, नए नए अमाल पूछते हैं। भाई पिछले साल तो ताख़रात में हम बैठे हुए थे, हमने ये अमाल किए हैं, इस साल ज़रा ये बताओ कि नया अमल कौन सा होगा जी? एक अमल तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, सबसे बड़ा अमल क्या है? किसी को सताना मत, बस। बाकी अमाल तो करने हैं, लेकिन सारे अमाल करके अगर आपने वो अमल कर दिया तो सारे अमल खत्म। सारे अमाल करें, फिर किसी को सताओ मत, फिर आप जो भी अपने रब से मांगेंगे अल्लाह आपके लिए दरवाजे खोलेगा जी। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह थे। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के अंदर पढ़ते थे, असर में थे, दूसरे घराने के। उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, दारुल देवबंद में दाखिला ले लिया। और हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ये इनके साथियों में से थे। शेख रहमतुल्लाह अलैह इनको पढ़ाते थे, इनके उस्ताद थे। एक मौलाना साहब जो हैं दाएं बाएं फिर रहे हैं, मेरी एक लड़की है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं रिश्ता किसी ऐसे लड़के को दूं जिसके सीने के अंदर वाकई वो ईमान हो। आप दारुल देवबंद पहुंचे हैं तो क्लास लगी हुई है, और वहां पर जो है आपकी नजर पड़ी मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। तो मौलाना साहब ने कहा कि मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता जो है इस नौजवान को दे दूं। उन्होंने कहा जी ये तो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं, न इनका घर है, न दर है, न बार है। उन्होंने कहा मौलाना
ظاہر میں جو آپ کہتے ہیں کہ گھر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اس لڑکے کے باطن کو دیکھ لیا ہے، جو مومن نا فراست کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ میں نے جو ہے وہ فراست سے پہچان دیا ہے یہ لڑکا بڑا عظیم عالم بنے گا جی، اللہ نے اس کے اندر تقویٰ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھیے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹا یہ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا استاد محترم جو آپ کا دل کرے تیار ہے۔ مولانا بھی تیار ہوئے، وہ بھی تیار ہوئے، کہنے گے جی عصر کی نماز کے بعد جو ہے نکاح پڑھیں گے جی، عصر کی نماز کے بعد نکاح۔ اتنے میں ان سے پوچھا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ساتھیوں نے کہا ابھی آپ دلہا بننے والے ہیں، نئے کپڑے تو پہن لیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں میں دے دیتا ہوں۔ کہا کہ یاد رکھو اللہ کے سوا کسی سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ کہنے گے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، پھر ایک ہی ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے جو پرانے کپڑے ہی ان کو دھل لو تاکہ عصر میں پہن لیں گے۔ آپ کہتے ہیں کپڑے دھل لیے، اللہ کا نظام ایسا چلا اسی دن بارش ہوئی ہے، کپڑے کہاں سوکھیں، نچوڑ وچوڑ کے کچھ کیا ہے، وہ گلے کپڑے پہنے، دلہا آ کے بن گئے بیٹھ کے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد جب بیوی کی رخصتی ہوئی، بیوی گھر آئی، انہوں نے دارالعلوم کے باہر ہی جو ہے وہاں پر کمرہ لے لیا، دونوں میاں بیوی رہے وہاں۔ پہلی رات آئی یا بیوی کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی ہے اور شوہر جو ہیں وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بیوی نے کہا کہ دیکھیں آپ گھبرائیے مت، پریشان نہ ہو، ایسا کریں آپ کہ سبزی فروش جو سبزی بیچنے والا تھا اب ان کی دکان بند ہو گئی ہے، آپ جائیں، ابھی دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ پتے وتے جو نیچے گرے ہوں گے وہ اٹھا کے لے آؤ، مجھے دے دے، میں گرم پانی میں ڈال کے ابال کے میں بھی کھا لوں گی، آپ بھی کھا لو۔ انہوں نے بہت اچھا گئے، جا کر وہ پتے لائے، ان کو ابالا، گرم کیا، میاں نے بھی کھایا، بیوی نے بھی کھایا، کھا کر جو ہے رات کو کچھ دنوں تک گزارا۔ یہ چلتا رہا سلسلہ ایسے ہی۔ اس کے بعد لڑکی جو ہے جب اپنے بیکے میں گئی تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ امی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، اللہ نے تو مجھے دنیا ہی میں جنت دے دی ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے اچھے شوہر عطا کیے۔ اس کے بعد لڑکی واپس آئی تو یہ پہنچے ہی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کہا استاد محترم میں بھی گزارا کر رہا ہوں، میری بیوی بھی کر رہی ہے، ساری رات بھوک سے میں بھی تڑپتا ہوں، میری بیوی بھی تڑپ رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پتوں پہ گزارا ہو رہا ہے۔ استاد محترم ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے آپ کہ جس وظیفے کی وجہ سے اللہ مجھے برکت دے، تاکہ اس برکت کے ذریعے سے میرے آنے والی جو نسل ہے وہ کسی کے محتاج نہ بنے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اس لیے تو دعا ہے نا، قرآن مجید کے اندر یہ دعا ہمیں بتلا دی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے دنیا بھی مانگیں اور آخر بھی مانگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں بھی ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور بھی مشہور دعائیں ہیں جس میں اللہ سے دنیا بھی خوب مانگی ہے، آخر بھی خوب مانگی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احمد علی میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے شروع میں 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور آخر میں پڑھ لیا کریں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، ہر نماز کے بعد کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ، 3 دفعہ درود پاک شروع میں، 3 دفعہ آخر میں۔ کہتے ہیں ابھی وقت کم ہی گزرا، اللہ نے اتنا مال مجھے اس وظیفے کی برکت سے عطا کیا کہ وہ احمد علی لاہوری جو رات کو پتے کھا کر گزارا کیا کرتا تھا، آج احمد علی لاہوری کے دسترخوان پہ جو صبح ناشتے میں پھل آیا کرتے تھے وہ طائف سے جو ہیں پھل پہنچا کرتے تھے ہمارے یہاں دسترخوان پہ۔ اور پھر اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا، اگر میں چاہتا 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی جو ہیں اس کی میں ایک مسجد بنا سکتا تھا۔ جس سے میں نے یہ عمل کے بارے میں سنا نا، میں نے بھی سوچا یا اللہ یہ عمل اگر مجھے بھی پتہ لگ جاتا تو میں بھی یہی کرتا۔ کیا سمجھے آپ؟ اگر شروع میں پتہ لگتا تو یہ عمل کرے آدمی کتنا آسان ہے۔
تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے؟ پتوں والی زندگی تھی، اور کہاں سے اللہ نے کہاں پہنچایا؟ لیکن کیا کیا؟ اپنے رب سے مانگا جی ایک عمل، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ لیا آپ نے؟ کچھ نہیں سمجھے میرے خیال سے، کچھ نہیں سمجھے. ہاں یہ بات ہے، قاری صاحب پہچان گے جی. ایسے ہمارے یہاں آگے جو تراویح سناتے ہیں نا، لقمہ دینے والا بھی ہمارا آدمی پیچھے ہوتا ہے نا، تو اسے قاری صاحب نے لقمہ دیا جی. دوسرا عمل، جس عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اس کی فضیلت جو ہے بیان فرمائی ہے جی. آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو ذر میں آپ کو نہ بتاؤں عرش عظیم کے نیچے جتنے خزانے ہیں، میری بات پر توجہ کرنا، عرش عظیم کے نیچے جتنے خزانے ہیں ان سارے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ میں آپ کو نہ بتاؤں وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائیے آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ سب سے بڑا خزانہ عرش عظیم کے جو نیچے ہے وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ جی. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے، جو شخص بھی اس عمل کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا رہے، کوئی حاجت اس کی ایسے نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی اس حاجت کو پورا نہ کر دے جی. سوائے وہ حاجتیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں، وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی جو شرعی حدود کے اندر ہو جی. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو عمل دیا، اور جہاں تک مجھے سمجھایا میں ایسا سمجھا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مراد یہ ہے کہ لا حول ولا قوت، اے اللہ کوئی خیر کا کام نیکی کا کام کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتا، گناہ کرنے کی طاقت بھی میرے اندر نہیں، اے اللہ کوئی خیر کا کام کرنے کی طاقت بھی میرے اندر نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تسبیح پڑھنے کی طاقت بھی میرے اندر نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ سانس لینے کی طاقت بھی میرے اندر نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ مگر آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. یعنی جیسا آپ چاہیں گے تو آپ بڑی طاقت والے اور قدرت والے ہیں، آپ چاہیں گے سب کچھ ہوگا. میں نیکی کا ارادہ کر سکتا ہوں لیکن نیکی تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ نہیں چاہیں گے. اے اللہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا جب تک آپ نہ چاہیں، اس لیے کہ آپ الا باللہ، آپ ہی تو ہیں نا، بڑی طاقت والے اور قوت والے ہیں، ان گناہوں سے بچا بھی مجھے آپ سکتے ہیں اور نیکی کی راہ پر بھی جو ہے مجھے آپ ہی ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا جی. اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غم، دوسرا ہوتا ہے ہم. ایک ہے غم، دوسرا ہے ہم. غم اسے کہتے ہیں کسی کا بیٹا مر گیا اس کا غم آ گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا اس کا غم آ گیا، کوئی ایسی خبر سنی ہے اس کا غم آ گیا. لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پوچھیں کہ آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے خود بھی نہیں پتا ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں، نقصان کوئی بھی نہیں ہے، تکلیف کسی قسم کی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں مجھے خود بھی خبر نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کیوں ہوں پریشان. اس کو کہتے ہیں عربی میں ہم. ایک ہے غم، دوسرا ہے ہم. فرمایا کہ غم اور ہم ان دونوں بیماریوں کے ذریعے سے پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پھر جب وسوسہ ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات کے اندر سے بھی ہیں، اور یہ ڈالتے ہیں وسوسہ. اور فرمایا کہ ہم کے ذریعے سے، غم کے ذریعے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ان وسوسوں کو پیدا کرنے والا، ختم کرنے والا ایک ہی عمل ہے جو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، وہ عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. سالم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں،
मक्का फतेह हुआ, मदीना जाने वाले मदीना चले गए, ये फंस के वहीं। औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला के बेटे औफ बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बड़े परेशान हाल हैं, सुबह शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहे। ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बच्चा सालिम वो मक्का में फंस गए हैं, तो आप कुछ करें, आप कोई दुआ फरमाएं, कोई अमल दें आप जिस जरिए से अल्लाह हमारे बच्चे को राही अता फरमा दे। तो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप किसी को भेजें। उन्होंने एक कासिद भेजा कि चुपके से जाकर सालिम के कान में ये अमल बता दीजिए, आप इस अमल को करो, अल्लाह उनको राही अता करेगा। कासिद आए, आकर सालिम रजी अल्लाह तआला को बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भला अमल बताया है। उन्होंने आकर अमल करना शुरू कर दिया, और जैसे अमल शुरू किया, इस अमल की बरकत से इतनी तेज आंधी चलनी शुरू हुई है कि जिस आस पास के जितने मकान थे मक्का वालों के सबकी छतें उड़ गई, हवा का तूफान चला, और जो हजरत सालिम को जो बेड़ियां डाली गई थी वो सारी बेड़ियां टूट गई है। आप बाहर निकले, उन्हीं की सवारी ली, उसी पर बैठे हैं। जब मदीना की तरफ आप रवाना होने लगे, रास्ते में देखा ऊंट थे, ऊँटों ने हजरत सालिम रज़ी अल्लाह तआला को देखा तो वो भी इनके साथ हो गए। आगे चले हैं तो बकरियां देखी और बकरियां भी इनके साथ हो रही, यहां तक कि मदीना तैयबा में पहुंच गई हैं। जब मदीना तैयबा पे पहुंचे, औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने जाकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अमल आपने बताया था सालिम ने किया, अब सालिम तो घर पहुंच गए हैं लेकिन बहुत सारे ऊंट और बहुत सारी बकरियां भी आ गई हैं, उसके बारे में क्या करें। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह उसके लिए सबब पैदा कर देता है। उसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम थे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इज़हारुल हसन साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर मदरसा काशिफुल उलूम में वहां पर मुतमिम थे। एक दफा उन्होंने जिक्र किया कि ऊंटों की तादाद 400 थी जो हजरत सालिम के साथ मदीना तैयबा गई हैं, और बकरियों की तादाद 4000 थी। कितनी है? और एक बकरी अगर 5000 की भी हो, कितने की बन गई? एक बकरी 5000 की। हमारे यहां तो लंगड़ी बकरी भी नहीं मिलती है 5000 की। अगर 5000 की बकरी अगर होगी तो कितनी बन गई? कितना बन गया? 2 करोड़। चलो हिसाब मुश्किल है, छोड़ो इस बात को, यहीं रोक लेते हैं जी। तो ये अमल किसने बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसको बताया जी? मैं आपकी नींद उठा रहा हूं जी। किसको? हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला को। तो सालिम रज़ी अल्लाह तआला, देखिए 2 चीजें इस अमल के जरिए से। एक फायदा ये आया, जब आप इस अमल को करेंगे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अल्लाह बंद जगह पर भी आपके लिए हालात ऐसे पैदा कर देगा, दुश्मन कितना ही आप पर मुसलत क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह निकलने का रास्ता आपके लिए पैदा कर देंगे। एक ही। और दूसरा ये होगा, इस अमल की बरकत से इंसान तो इंसान रहे हैं, जानवरों के दिलों के अंदर भी अल्लाह आपकी मोहब्बत पैदा करेगा जी। करेंगे इंशाअल्लाह? कुछ भी नहीं करेंगे। क्या अमल है? आपको किसने कहा? मैंने तो बात ही नहीं की है, आपको किसने बता दिया? बिल्कुल यही अमल है। और मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह ने लिखा है, ये अमल रोजाना 500 दफा पढ़ा करें। 100 दफा शुरू में दुरूद पाक और 100 दफा आखिर में। जो शख्स भी 500 दफा इस अमल को करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ वही मामला करेगा, वैसी ही मदद आएगी जैसे हजरत सालिम रज़ी अल्लाह तआला की मदद आई है। आपको शक है? पहले वाला अमल वो भी तो आपको बताना है ना, आप नहीं पूछेंगे, मुझे पता है। नींद का मसला है, वो भी तो पूरी करनी है। कभी कभी ऐसा है कि बैठा होता है आदमी मस्जिद में, परेशानियां हैं जिंदगी के अंदर, ख्यालात ना जाने कहां से कहां हो। एक साहब परसों थे हमारे साथ नमाज में, वो खड़े खड़े नमाज में सो गए। अब हैं मेरे पास, मैंने क्या किया, वो कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं। अब मैंने थोड़ी सी टक्कर मार दी, वो नमाज से मुझे कहते हैं जी क्या हुआ, नमाज टूटी? नहीं टूटी। टूट गई? बहुत सारे कहते हैं नहीं, नींद में थे ना। और नींद में तो होते ही, जाहिर सी बात है, नींद ही, अगर नींद की हालत के अंदर आदमी हो फिर तो वैसे भी वुज़ू बनाना है भाई, 100% है। अच्छा, बाज़ लोगों की आदत है खड़े खड़े पे सो जाते हैं जी, वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। अल्लाह बख्शे,
हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह को जब उस वक्त वो जमातें हमारे निकालते थे, तलबा की हम निकलते थे, तो बस पर जब हम बैठते थे नींद का गलबा बहुत ज़्यादा होता था, तो बस का वो डंडा जैसे पकड़ते थे, पकड़ते पकड़ते हम अपनी नींद जो है ना, खड़े खड़े हम अपनी नींद पूरी कर लेते थे जी उसमें। तो ये भी होता है, और ये भी अल्लाह का बड़ा इनाम है कि नींद आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नींद के लिए तरस रहे हैं, नींद ही नहीं आती। इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको नींद आ रही है, ये अल्लाह की नेमतों में कितनी बड़ी नेमत है। याद रखिए, नींद का वक्त पे आ जाना ये अल्लाह की नेमत, और फिर सुबह उठ जाना ये भी अल्लाह की नेमत। एक आदमी को नींद ही आती रहे और वो उठे ना, तो ये नेमत नहीं है, ये क्या है, जहमत। और नींद का आ जाना ये अल्लाह की नेमत है, और नींद से फिर बेदार हो जाना ये अल्लाह की दूसरी नेमत है। सांस लेना ये एक नेमत है, सांस का छोड़ना ये दूसरी नेमत है। आंख का होना ये अलग नेमत है, आंख की रोशनी का होना ये अलग नेमत है। दिमाग का होना ये अलग नेमत है, और दिमाग का सलामत रहना, सही चलना ये अलग नेमत है। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं। कितनी नेमतों के शुक्रगुजार हम बन जाएं, कितनी नेमतें पर हम शुक्र करें। यदि शुक्र करते करते हमारी ज़ुबान थक भी जाए, फिर भी अल्लाह का शुक्र हम उसका हक अदा नहीं कर सकते हैं। आप देखें अल्लाह ने आपके ऊपर कितना बड़ा कर्म किया। आप खाना खा रहे हैं, आपके हाथों की उंगलियां हैं। आप उन लोगों को देखिए, आप जिन बेचारों के हाथों की उंगलियां नहीं है। और ऐसे ही आप चल रहे हैं, आपके दोनों पैर हैं, लेकिन आप उन लोगों को देखें कि जिनके दोनों पैर ही नहीं हैं। एक आदमी के पास 40 लाख की गाड़ी है, लेकिन उसका पैर ही नहीं है दायां। अब मुझे बताइए, आप वो अमीर है या आप अमीर हैं? 40 लाख का नाम सुन के क्या हो रहा है? एक आदमी के पास, मैं और आगे बढ़कर कहूं, एक आदमी के पास 10 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उसका पैर नहीं है। उसके मुकाबले में आपके पास साइकिल है या पुरानी गाड़ी है 800, जिसको धक्का मार के चलाते हैं, और फिर देखिए, आप देखें पैर आपके सलामत है। मुझे बताइए, 800 वाले जिसके दोनों पैर सलामत हैं, मुझे बताइए ये अफजल है या 40 करोड़ वाला जिसकी टांग नहीं है? आपको क्या चाहिए? एक आदमी वो है जो ये कहता है उसके पास 50 करोड़ रुपए है। कितना जी? सारी जिंदगी बेचारे ने मेहनत की, खून पसीना किया बेचारे ने, वो भी लगे हैं, बाल बच्चे भी लगे हैं, न खाने का पता न पीने का पता। 40 करोड़ रुपए उसने जमा किया, वो बड़े खुश है। मेरे पास कितना है? पड़ोसी दूसरा है, 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से उस बेचारे को बनता है जी, ठीक है। लेकिन ये 40 करोड़ वाला है, इस बेचारे को रात की नींद नहीं आती है, ये परेशान हाल है। पड़ोसी ऐसा है, सुबह आकर इसके दरवाजे पे धड़म धड़म भी होता है, इसकी फिर भी नींद नहीं खुलती है। मुझे बताएं, वो अफजल है ये अफजल है? कौन है? कौन? जिसको वक्त पे नींद आई है। अच्छा, वो 40 करोड़ वाला, उसका डकार फंस गया, क्या होगा? डकार समझते ना आप? उसका डकार फंस गया, उसको डकार नहीं आ रहा है। एक गरीब है, उसके सामने उसको डकार मुफ्त में आ रहे हैं। वो बेचारा इलाज कर रहा है, सारे कश्मीर के डॉक्टरों के पास गया, लेकिन डकार नहीं आ रहा है, डकार यहाँ सीने पे बंद हो गया। अब किसी को डकार बंद हो जाए, फिर देखें क्या हालत होती है। यही पड़ोसी है, इसकी छींक भी बंद हो गई, और ये मजे से छींक पे छींक आ रही है उसको, वो तरस रहा है, इसको छींकें आ रही हैं। वो कहते हैं भाई आपको कैसे आ रही हैं? मैंने तो एक करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक मेरी छींक बाहर नहीं आ रही है। आपने कितने पैसे दिए? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, छींक पे छींक आती है। आज मुझे बताओ, अमीर ये है जिसको छींक आ रही है, या वो है जिसकी बंद हो गई है? अब इसको शुक्रगुजार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या ना शुक्र बनना चाहिए? इसको तो शुक्रगुजार बनना चाहिए। आप उस बेचारे की 40 करोड़ रुपया उसके पास है, बेचारे ने बड़े रात दिन लगा के उसने कमाया, उसने कमाई की, बेचारे ने जमा किया, तिजारत पे तिजारत की, वो सरमाया उसने जमा किया। अचानक ही अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, उस बेचारे की टांग टूट गई। अब मुझे बताइए, आप उससे ये कहें, आप थोड़ी देर के लिए बैठे, आप उसके पास ही बैठे, रात की तन्हाई में बैठे, उससे कहें अच्छा ये बताओ, आपकी दिल की तमन्ना क्या है? 40 करोड़ तो आपके पास है, अब आपकी आखिरी तमन्ना क्या है कि इस वक्त आपके पास क्या होना चाहिए? वो आपकी टांग की तरफ देख कहेगा, अगर मुझे टांग मिल जाती है ना, 40 करोड़ दे लेते तो 40 करोड़ ना मिलता है, ये टांग मेरे लिए अच्छी थी। कहेगा या नहीं कहेगा जी? कहेगा नहीं? वो उसे कहेंगे एक काम करो, आप सौदा कर लो। कहेंगे वो क्या? कहेंगे पूछने वाला कोई नहीं है,
یہ اپنی ٹانگ مجھے دے دو 40 کروڑ آپ لے لو. وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے آج مجھے پتہ لگا، میں بھی غافل تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ٹانگ کی قیمت 40 کروڑ ہے، مجھے اب پتہ لگا کہ میری ٹانگ کی قیمت تو 40 کروڑ ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے ایسا لگا 40 کروڑ 40 کروڑ کتنے کروڑ ہو گیا؟ اور پھر اوپر والا ایسا 40 کروڑ اور 40 کروڑ کتنا ہو گیا؟ اور اسی بازو کا 40 کروڑ لگاؤ، اس بازو کا 40 لگاؤ، کتنا ہو گیا؟ آنکھوں کا بھی 40 لگاؤ. پھر کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اب میں نے شروع میں جو آپ سے ذکر کیا، مومن کس سے پہچانتا ہے؟ فراست سے. لیکن فراست کس سے آتی ہے؟ ایمان کے ساتھ اور اعمال صالح کے ساتھ. تو اعمال صالح میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو گنی، نماز بھی گنا، اعتکاف کا بھی گنا، فرائض بھی ہیں، رمضان مبارک کے روزے بھی ہیں، اسی میں صدقہ اور خیرات بھی ہے. اب صدقہ کیا ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں، آپ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی ہے آپ کے بس میں ہے وہ کریں. جیسے پیاسے کو پانی پلا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑے پہنا دیے، اور بھی جو ہو سکتا ہے وہ کریں آپ. یمن کے اندر ایک صاحب تھے، ان کا کاروبار کا کام کیا تھا؟ یہ آلو ہوتے ہیں نا زمین کے اندر جو ہم ڈالتے ہیں، اس کے جو بوٹے وغیرہ اڑتے ہیں، اگ جاتے ہیں نا، اس کے لا کر بازار میں مارکیٹ میں اس کے درخت جو ہیں وہ فروخت کرتے تھے. سارے یمن کے اندر یہ شخص جو ہیں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ تاجر بڑا دیانتدار ہے، اور ان جیسے بوٹے کسی اور کے پاس نہیں ہیں. اس کا پھل بھی بڑا ذائقہ دار ہوتا ہے آلو کا. ان کی بیوی بیمار ہو گئی. جیسے بیوی بیمار ہو گئی تو یہ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو ساتھ لے کے چلے. بچے کی عمر کم از کم 2 سال کی تھی. بیوی کو علاج کریے چلے. واپسی پر جب آئے تو اس وقت کے اندر یہ گاڑی چلتی تھی جس پہ وہ سواریاں وغیرہ وہ جنگلوں کے اندر وہ یعنی پہاڑوں کے اوپر جو ہیں وہ گاڑیاں جو ہیں وہ سفر کرتی تھی. نہ بھی روڈ ہو تو وہ جنگل کے اندر چلتی تھی وہ گاڑی. یہ بھی سوار ہیں اور بھی سواریاں ہیں. واپسی پہ آ رہے ہیں، جب یہ کسی جگہ پہنچے ہیں تو بیوی بیچاری کو نیچے اترنا ضروری ہو گیا. وہ نیچے اتری ہیں. بعض بچے شرارتی ہوتے ہیں نا بہت زیادہ. بچہ ان کا بڑا شرارتی تھا، وہ 1.5-2 سال کا. 1.5-2 سال کا بچہ ایسے شرارت کی ماں جیسے اتری ہے یہ بھی پیچھے سے اتر گیا. رات کا وقت ہے. اچھا باپ تو آگے بیٹھا ہے، خبر نہیں کہ آپ سو گئے ہیں، پتہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. اچھا ماں کو خبر نہیں ہے کہ بچہ نیچے اتر گیا. ماں واپس آئی، بچہ آگے چلا گیا. یہ گاڑی چلتے 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 جو لمبا سفر کیا ہے اپنے مقام پہ پہنچے. بیوی شوہر سے پوچھتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ بچہ کہاں گیا. انہیں کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ واپس وہاں اس جگہ پہنچے ہیں تلاش کرنے کے لیے، اس جگہ پہ ان کو بچہ نہ ملا. اللہ کے نظام ایسا ہوا، یہ بچہ وہاں سے تھوڑا آگے چلا. چلتے 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 وہاں پر آگے دیکھا ہے ایک بڑا رئیس آدمی ہے، وہاں ان کے گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اب یہ بچہ اس گندم کے اندر اپنے پیر لے کے بیٹھ گیا. اتنے میں وہ امیر شخص آیا، اس نے اس بچے کو لیا اور گھر والوں سے کہا کہ دیکھو، بیوی سے کہا اللہ نے ہمیں اور بھی بچے دے رکھے ہیں، ایک بچہ اللہ نے اور دے دیا. یہ راستے سے بچہ ملا ہے، کوئی خبر نہیں ہے کس مسافر کو اپنا بچہ چھوٹ گیا ہے. اچھا اس ماں باپ سے پوچھیں کہ جس ماں باپ کے ساتھ ایسا حادثہ بن جائے ان کے سر کیا گزرتی ہے. کہتے ہیں بچے کو ہم نے لے لیا، اور یہاں تک کہ اس بچہ بڑا ہو گیا، بچے کو کاروبار دے دیا، ہمارے بچوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سارا ہو گیا. اس کے بعد بڑا مشہور ہو گیا کہ ہمیں اس تاجر کے پاس جانا ہے، وہ جو کس کے بوٹے بیچتا ہے؟ آلو کے. سب نے ضد کی ہے کہ نہیں، ہم سارے بچوں نے کہا ہم بھی چلیں گے. کہیں گے جی آؤ. یہ چلے گئے خریدنے کے لیے. انہوں نے وہاں پر وہ درخت پیڑ جو ہیں ان سے لیے. لینے کے بعد دیکھا یہ جو بیچنے والا ہے یہ بڑے صدمے میں ہے. رش تو بہت سارا ہے ان کے پاس، پیسہ بہت آ رہا ہے، خریدار بہت زیادہ آ رہے ہیں، کام بڑا اچھا چلتا ہے. اس شخص نے ان سے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا میں فلاں جگہ کا ہوں. بس اس شخص نے اپنا سر پکڑ لیا جس کا بچہ گم گیا تھا. اس نے سر پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے آپ کے علاقے کا نام سن کر مجھے ایک زخم ہوتا ہے. کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ میرا سفر ہو رہا تھا فلاں وقت کے اندر. پورا واقعہ سنایا. میرا معصوم بچہ وہاں جس کی عمر جو ہے 1.5-2 سال کی تھی، وہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. آج تک وہ بچہ ہمیں نہیں ملا ہے. صدمے سے اس کی ماں بھی بیمار ہو چکی ہے اور میں بھی پریشان حال ہوں. میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے اسی بچے کی کمی ہے جو بچہ ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جس بچے کا ذکر کرتے ہیں یہ کب کی بات ہے؟ کہنے کہ فلاں وقت کی بات ہے. کہنے کہ اچھا.
इन्होंने इनसे कहा घबराओ मत, आपकी अमानत मेरे पास है, आपकी अमानत मेरे पास है। आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी शादी करवा दी है, उसके बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। और उस वक्त जो है जब उन्होंने बच्चे को लाया, बच्चे को मिलाया, मिलाने के बाद जब आप अपने बेटे से मिला है, उस वक्त उस बच्चे की उम्र 25 साल थी। कितने साल का गुमा था वो? 1.5 साल का। 25 साल के बाद किससे मुलाकात होती है? वालिद से। लेकिन वालिद का काम क्या था? जो भी उनके पास आते थे ना, उनके ये कारोबार था, वो यही दरख्त जो है ना, ये सदक़े के तौर पर जो है ना, आलू के दरख्त जो है, जिसको जो आता था उसको दे देते थे। आलू के पेड़ सदक़े में अल्लाह के रास्ते में दे दिए, उसके आलू तैयार हुए, जिस इसने खाया उसका सवाब इसको मिलता रहा। इसकी बरकत से अल्लाह ने इनके बच्चा जो है वो अमानतन ऐसे रईस करके अंदर पहुंचा दिया कि जहां अमानतन उसे रखा गया, फिर वो लड़का भी बहुत बड़ा ताजर बना। लेकिन किसकी वजह से? बुनियाद है सदका जी। अल्लाह हमें सदका करने की तौफीक अता करे जी, और इखलास के साथ करने वाले हम बन जाए। यही चीजें हैं जो आज हम करेंगे ना, हमारे ईमान को भी मजबूत करेगा, अमाले साले में दाखिल हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह इसके बरकत से दुनिया भी अच्छी बनेगी और आखिर भी अच्छी बनेगी। अब मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं, मोमिन किससे पहचानता है? फरासत से। लेकिन फरासत कैसे आएगी? इन्हीं अमाल के जरिए से फरासत आएगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आप बैठे हैं, सहाबा किराम का बड़ा मजमा है। एक औरत आई, उसने आकर सिर्फ इतनी बात कही, अमीरुल मोमिनीन मेरा शोहर सारी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, सारा दिन रोजे से रहता है। क्या कहा? सारी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और सारा दिन रोजे से रहता है। सहाबा किराम जमा हुए, अमीरुल मोमिनीन इस औरत को क्या गर्ज थी? इसने सबके सामने आकर जो है अपने शोहर की बड़ी तारीफ की है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने फरासत से पहचान लिया। आपने फरमाया इस औरत ने आकर शोहर की तारीफ नहीं की है, बल्कि उसका शिकवा किया है। यह कहा है जो शख्स सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहे, सारा दिन रोजे से रहे, मुझे बताओ अपने बच्चों को, औलाद को कैसे वक्त देगा वो? ऐसे काब रज़ी अल्लाह को बुलाया गया कि जाओ, जाकर उसे बुलाओ और उसे ये कहो कि 3 दिन रात को तहज्जुद पढ़ा करें और 3 दिन में रोजा रखा करो। चौथे दिन क्या किया करो? दिन में क्या किया करो? खाया करो। फर्ज रोजों का नहीं कहा, मतलब आप कहीं फतवा मिल गया 3 दिन रोजे रखेंगे, चौथे दिन खाएंगे। ये फर्ज रोजों की बात नहीं, ये असल में नफली रोजों की बात थी जी, कि रात को 3 दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ो और चौथे दिन घर वालों को दो, और दिन में 3 दिन रोजे रखो और चौथे दिन घर वालों के साथ खाना खाओ। तो उन्होंने फरासत से पहचान लिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास एक मुकदमा आया, औरत कह रही है ये बेटा मेरा नहीं है, और बेटा कह रहा है कि ये औरत मेरी मां है। आप ऐसा कैसा करेंगे आप जी? बेटा कह रहा है ये मेरी मां है, और मां क्या कह रही है? ये मेरा बेटा नहीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में तो आया है, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म के शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कि चुटकियों में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के बड़े बड़े मसलों को हल करते थे जी। उन्होंने कहा अच्छा अब मैं क्या करूं, ये लड़का कह रहा है ये मेरी मां है, लेकिन औरत कह रही है ये मेरा बेटा नहीं, अब मसला कैसे हल हो? तो फौरन वो मोमिन की फरासत से जो है वो पहचान लिया आपने फरमाया अच्छा मैं ऐसा कर लेता हूं, मुझे ये बताइए। औरत से कहा आपके शोहर हैं? उन्हें कहा शोहर का इंतकाल हो गया। कहने के फिर मैं ऐसा करता हूं, इस नौजवान लड़के का निकाह आपसे करवा देता हूं। जैसे कहा ना, इस नौजवान लड़के का निकाह आपसे करवा देता हूं। उसने कहा ए अली ऐसा नहीं करना, अल्लाह की कसम ये मेरा ही बेटा है। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताइए पहले आपने इनकार क्यों किया कि ये मेरा बेटा नहीं है? कहा मैंने इनकार इसलिए किया, मैं सफर में थी, मेरे भाई ने जो है एक हबशी के साथ मेरा निकाह करवा दिया। उसके बाद ये लड़का पैदा हुआ, लड़का है चेहरे का जो है जिस्म का काला है, तो मुझे शर्म आई कि इतना सारा काला लड़का लेकर मैं जाऊंगी अपने खानदान में, वहां सारे के सारे खूबसूरत हैं, और फिर सारे खानदान वालों को पता भी नहीं है कि मेरा निकाह पहले हो गया, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था जी। तो शर्म की वजह से मुझे आर लगी, जिस वजह से मैंने उसको बेटा कहना ही इनकार कर दिया। जब ये छोटा सा था मैं उसी वक्त मैंने किसी औरत के इसके हवाले कर दिया। अब पता नहीं है ये रास्ता ढूंढते ढूंढते जो है मेरी पहचान करते हुए ये मुझ तक पहुंच चुका है। ए अली ऐसा मत करना आप, इसका निकाह तो मुझसे हो नहीं सकता है क्योंकि मेरी औलाद है, मैंने तस्लीम कर लिया ये मेरा बेटा है।
काजी अय्याज साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, बड़ी फरासत अल्लाह ने दी थी। उनके पास जो है दो आदमी आए, एक ने कहा मैंने इनसे कर्ज दिया था वापस दे दिया है, दूसरे ने कहा ये कर्ज वापस नहीं दिया। अब कैसे करें, फैसला कैसे करें आप? यानी जिसको देना था, कर्ज लिया था, वो कह रहे मैंने वापस कर दिया, और दूसरे कह रहे मैंने लिए नहीं। पहले वाले से कहा ये बताइए आपने कहां दिया? उसने कहा जी फलां दरख्त था उसके नीचे दिया है। इनसे कहा आपने लिया? इन्होंने कहा मैंने लिया नहीं है। इनसे कहा कि आप ऐसा करें, आप जाएं, जाकर हो सकता है आप जो देना चाहते थे दे नहीं सके हैं, गिर गया है उस दरख्त के नीचे, जाएं जाकर आप तलाश करें। थोड़ी देर के लिए मशगूल हो गए अपने काम में, और उसके बाद जब वापस आए फिर इससे कहा ना, जिसने कहा था क्या मैंने लिया नहीं है, इससे कहा अच्छा ये बताएं आप, ये उस दरख्त के नीचे वो पहुंच गया होगा जहां उसने आपको कर्ज दिया था? कहने की नहीं, अभी वो दूर है। कहने की इसका मतलब है आपने कर्ज ले लिया है। उसने कहा ये अल्लाह की कसम मैंने ले लिया है। ये फरासत थी, फरासत मोमिना है। लेकिन याद रखें फरासत मोमिन तब आती है जब ईमान हो, ईमान के साथ अमाल साले हो। अल्लाह ने हमें मौका दिया, अब ये मौका भी अल्लाह ने दिया, आज की रात भी अल्लाह ने हमें नसीब कर दी, और अल्लाह करे ये ताक़रातें और भी हमें नसीब हो जाएं, और अल्लाह करे आइंदा रमज़ान मुबारक भी हमें नसीब हो जाए। तो ये अल्लाह जो मौका दे रहा है, एक एक घड़ी को कीमती समझकर जो है आमाल साले करने वाले बन जाए। रास्ते में गाड़ी में बैठे हैं तो जिक्र करते रहें, गाड़ी चल रही है आप जिक्र कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अपने बच्चों को वक्त दे रहे हैं इखलास के साथ, वो भी जिक्र में है, अपने बाल बच्चों से बैठी इखलास के साथ बातें कर रहे हैं, वो भी जिक्र है। यानी चलते फिरते अपने वक्त को ज़ाया न करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वो वक्त जो अल्लाह के जिक्र से यानी थोड़ी देर के लिए वक्फा हो जाता था, उसमें भी आप क्या कहते थे? जब आप बाथरूम से जब जाते थे उस वक्त कौन सी दुआ पढ़ते थे? जब बाहर निकलते थे उस वक्त कौन सी दुआ पढ़ते थे? बाहर निकल के जो आप दुआ पढ़ते हैं, और उस वक्त आप या अंदर जाने से पहले जो दुआ पढ़ते हैं, वो तो यही अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगता हूं। यानी ये जो वक्फा मुझे थोड़ा सा गफलत में गुजर गया, जो मैं आपका जिक्र न कर सका हूं, या अल्लाह तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें ये मौका नसीब फरमाया, यातें अल्लाह नसीब कर रहा है। जितने दिन जिंदगी के अंदर अल्लाह ने हमें दे रखे हैं, इसमें क्या करें? अपने दिनों को, अपने अवकात को कीमती बनाएं। आप कुरान पाक की तिलावत करें जितना हो सके। ये रमज़ान मुबारक के चंद दिन बाकी हैं, इसमें जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत करें। अच्छा, हमें को पूछता है भाई क्या करें? करिए, एक सिपारा पढ़ा था लेकिन थक के आगे पढ़ नहीं सकता हूं मैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मक्का मुकरमा से मैं चला, मदीना मुनव्वरा का सफर किया, मैं सवारी पे बैठा हूं, 16 दिन लगे हैं मदीना तैयबा पहुंचने में। 16 दिनों में मैंने 16 खत्म कुरान किए हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमजान मुबारक के अंदर 63 खत्म कुरान किया करते थे। कितने जी? आप देखिए, आप रोजाना कितने कुरान हो गए। इससे मेरे बुजुर्ग को हम अपना ताल्लुक से जोड़ें, अल्लाह के कुरान से जोड़ें, अल्लाह की किताब से जोड़ें, अल्लाह के ज़ात के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें। अल्लाह के ज़ात के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ेगा, या जितने दुनिया में फितरे नजर आते हैं, जो ताकतें नजर आती हैं, बातिल ताकतें हैं, याद रखिए आप, हर बातिल ताकत खत्म होगी ईमान और आमाल साले के जरिए से। ये इसका वाहिद हाल है। हमारे सोने के कांधों से आज तक दुश्मन को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे तेल के ज़खायर से दुश्मन को फायदा तो पहुंचा है, लेकिन दुश्मन को नुकसान हमारे जरिए से नहीं पहुंचा। हमारे कोयले के जरिए से दुश्मन को फायदा तो हुआ, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। याद रखिए आप, सारा दुनिया का बातिल जो टूटेगा वो इसे कलमे के ज़रब से टूटेगा और अमाल साले के ज़रब से टूटेगा। जी बस अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुने ज़रा अमल की तौफीक अता करे। अमल तो आपने मुझसे पूछा नहीं क्या है। नींद में यही होता है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। ये तो अल्लाह ही की ज़ात है जिसको ना ऊँग आती है और ना उसको नींद आती है। बाकी हमें तो ऊँग भी है और नींद भी है। तो मैं बता दूँ वो अमल कौन सा है। कौन सा अमल? जो शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को बताया था। और वो अमल कौन सा है? वह अमल है हर नमाज के बाद जो है 7 दफ़ा पढ़ लिया करो, और शुरू में 3 दफ़ा दुरूद पाक, आखिर में 3 दफ़ा। वो बीच में जो 7 दफ़ा पढ़ने वाला है वो अमल है सूरह कुरैश, लीलाफ़ि कुरैश। ये हर नमाज के बाद जो है आप पढ़ दिया करें। कभी कभी ऐसा भी नहीं कि फ़र्ज़ के बाद जल्दी ना पढ़ सके आदमी, सुन्नत के बाद ही पढ़ सकते हैं आप। और कभी ऐसा जल्दी है आपको कि जल्दी दुकान पे निकलना है, मुलाजिम पे निकलना है, तो ज़रूरी नहीं कि बैठ के आप पढ़ें। गाड़ी में बैठे हैं फिर भी पूरा कर लीजिए।
आफिस से बैठे हैं फिर भी पूरा करें। तो इंशाअल्लाह जब इस अमल को करना आप शुरू करेंगे, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई थोड़ा ही अरसा गुजरेगा कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो जिस वक्त ये अमल करेंगे ना आप, जब सोने और चांदी की ईंटें मिलनी शुरू हो जाएं, फिर क्या करेंगे आप? अड़ोस पड़ोस को याद रखेंगे या नहीं? ये भूल जाएंगे आप। फिर अपने पड़ोसी हैं उनका भी ख्याल रखना है, अपने माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं उनका भी ख्याल रखना है, बाप के दोस्त हैं उनका भी ख्याल रखना है, दोस्तों के दोस्त हैं उनका भी ख्याल रखना है। खैर का काम अगर आप करेंगे, याद रखो आप, ये खैर का काम हम करेंगे ना, किसी को भी सदका करें, किसी को भी किसी चीज़ आप मदद करें, यानी लफ्ज़ इंसान, लफ्ज़ मुसलमान नहीं है, किसी इंसान को भी करें, यानी हर इंसान अल्लाह का कुंबा है। हमारा इस्लाम तो ये नहीं कहता भैया आप मुसलमानों ही की खिदमत करो, मुसलमान ही की मदद करो, कि नहीं, जहां आप मुसलमान की खिदमत कर रहे हैं, आपका पड़ोस का रहने वाला, आपके पास आने वाला साहिल जिस मजहब का भी वो है, वो आपके बारे में क्या चाहता है, क्या सोचता है, लेकिन आपके नबी ने जो आपको तालीम दी है वो ये है कि उसके साथ भी खैरखाही का मामला करना है। हमारा दीन तो हमें ये कहता है, हमारा दीन हमें इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। ये कहता है कि खैरखाही का मामला करो, खुद खाओ दूसरे को खिलाओ, खुद पियो दूसरे को पिलाओ, खुद पहनो दूसरे को पहनाओ। हमारे अंदर यही जज्बा हो, और जब ये चीजें होंगी तो अल्लाह की मदद आएगी। फिर जब भी दुआएं हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमारे हाथों को खाली नहीं भेजेगा, इंशाल्लाह हमारे हाथ जो आएंगे वो भर के आएंगे। तो करेंगे दुआ इंशाल्लाह। आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूं, रोजाना इंशाल्लाह। अब नाम लेके दुआ करेंगे, मुझे तो सबके नाम याद नहीं है, मुझे फायदा ये है कि शायद आपको मेरा नाम याद होगा, ठीक है। अगर मैंने ये कह दिया या अल्लाह सारे महजूर नगर वालों को कबूल फरमा, घर घर को कबूल फरमा, बच्चों बड़ों को कबूल फरमा, मस्तूरात के हैं उनको कबूल कर ले, बच्चे हैं उनको कबूल कर ले, तो यकीनी बात है उसमें तो सारी आगे ना। और नाम असल में हमें पहचानने की जरूरत है, लेकिन रब के लिए तो नहीं है ना, वो तो हर चीज की पहचान उसको है। लफ्ज़ सारी उम्मत को भी अगर हम शरीक कर देते हैं, उसमें भी जैसे हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस शख्स ने ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, या अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने सारे मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात के लिए दुआ मांगी है। दुनिया में जितने भी मोमिन मर्द मोमिन औरतें हैं, अल्लाह हर एक के बदले में इसके नाम अमार में एक एक नेकी लिख देते हैं जी। अब बताएं दुनिया में कितने सारे मोमिनीन मोमिनात हैं, मुस्लिमीन मुस्लिमात हैं। आपने चंद लम्हे के लिए कितना टाइम लगा आपको जब आपने ये कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा, लेकिन कितनी सारी नेकियां आपके नाम अमाल में आ गई। दुनिया में कितने मोमिनीन मोमिनात हैं जी? आज कितने हैं बोलिए? कितने अरब? 3 अरब। वह आपके नाम अमाल में कितनी नेकियां आ गई। और अगर आपने दूसरे दिन भी कहा, तीसरे दिन में, मैं कहता हूं अगर 3 ही दिन आपने ये दुआ पढ़ ली, कितनी अरब हो गई? 9 अरब। तो मैदान महशर में पता है क्या होगा? जो 50,000 साल का एक दिन होगा, उस दिन एक नेकी का मामला ये होगा कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनिही। एक नेकी के लिए ये फिरेगा किसके पास? मां के पास, बाप के पास, भाई के पास, बीवी के पास। ये रिश्ते करीब होते हैं ना। सब क्या कहेंगे? यौम यफिरुल मरउ, भाई भाई से भागेगा, बीवी अपने शोहर से भागेगी, शोहर बीवी से भागेगा, बाप से बेटा भागेगा, बेटे से बाप भागेगा। यौम यफिरुल मरउ, कोई किसी का काम आने वाला नहीं है। एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा। आपने 3 दिन में कितनी नेकी कमाई? थोड़ी ही, थोड़ी ही जी। कितनी अरब? अल्लाह ने कितना हमारे लिए खुले रखे हैं, दर खुले हैं। बस असल में ये है कोई मांगने वाला तो हो, लेने वाला तो हो। तो इंशाल्लाह ऐसे कोशिश करेंगे, मांगने वाले भी बनेंगे और लेने वाले भी बनेंगे। अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए जी। ये दुआ मांग लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, आप करीम ज़ात आपकी है, आसमानों के मालिक आप हैं, ज़मीनों के मालिक आप हैं, अर्श असीम के मालिक आप हैं, हम सब के मालिक आप हैं, दुनिया में जितनी चीज़ें बनी हैं हर चीज़ के मालिक आप हैं। ए अल्लाह, ये आपके हुक्म से बनी। ए अल्लाह, आपके हुक्म के बगैर कोई चीज़ भी वजूद में नहीं आई है। इंसान पैदा हो रहे हैं आपके हुक्म से, मर रहे हैं तो आपके हुक्म से, जो भी हो रहा है आपके हुक्म से। आपकी ज़ात आला है, आपकी ज़ात निराली है, आपकी ज़ात बड़ी प्यारी है, आप बड़े अजीम अल्लाह हैं। हम सबको आपने पैदा किया। ए अल्लाह, हमारी हर चीज़ जो हमारे पास है वो आपकी अता करदा है। ए मेरे मालिक, आप बहुत बड़े करीम हैं, रहीम हैं, सत्तार और गफ़ार भी है। या अल्लाह, हमारे साथ करीमी का मामला फरमा। ए अल्लाह, सतारी का मामला फरमा। गुनाहों में डूबे हुए हैं अल्लाह, हमारे गुनाहों का कोई शुमार भी नहीं है। ए अल्लाह, सितारों से ज़्यादा हमारे गुनाह है, रात के तारीकी से ज़्यादा हमारे गुनाह है, समुद्र की जाग से ज़्यादा हमारे गुनाह है। ये अल्लाह, तो आज की रात अल्लाह इस अरसे के अंदर, इस वक्त के अंदर हम आपसे भीख मांगते हैं अल्लाह, हमारे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह, सिर्फ माफ़ी ना कर दे बल्कि सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे, सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे, हमारे सय्यात को हसनात से बदल दे, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तो हमें माफ़ कर दे, हमारे माँ बाप को माफ़ कर दे, हमारे माँ बाप को माफ़ कर दे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको भी माफ़ कर दे, जिनके माँ बाप दुनिया से चल गए हैं उनको भी माफ़ कर दे। अल्लाह, ये दोनों में से कोई एक है, या इलाहुल आलमीन, उनके गुनाह को भी माफ़ फरमा। अल्लाह, जिनके माँ बाप कब्रों में है अल्लाह, उनकी बख्शे फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनकी आखिर के मुनाज़िर को आसान फरमा। ए अल्लाह, हम सब के साथ करम का मामला फरमा, हमारे अहल के साथ करम का मामला फरमा, आफियत और सलामती का मामला फरमा। आज के सारी रात सारी उम्मत को बख्श दे, सारी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा। उम्मत बातिल के नरखों में फंसी हुई है, फ़लस्तीन वाले बेचारे सुबह शाम फंसे हुए हैं, जुल्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं। हम इफ्तार करते हैं, पानी भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं, नेमतों से दस्तरखान भरे होते हैं। या अल्लाह, बड़ी इम्तिहान की घड़ी में फ़लस्तीनी भाई हैं, माएँ बहनें हैं, उनके ऊपर बमबारी हो रही है, पानी की जगह खून में नहा रहे हैं। अल्लाह, सही में मेरे अल्लाह, वो खाना रहे, उन बेचारों पर बमबारी हो रही है, और मेरे मालिक दुश्मन जानबूझ कर ऐसे वक्त पर हमले कर रहा है। अल्लाह, तो गैब से उनकी मदद फरमा कर, या अल्लाह, उनके दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह, उस दुश्मन को मिटा दे अल्लाह, ये अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे। और सबसे पहले हम उनके लिए हिदायत की दुआ मांगते हैं। अल्लाह, तो उनको हिदायत नसीब फरमा। अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है, या अल्लाह, उनको भी नेस्त नाबूद कर दे, उनका साथ देने वालों को भी नेस्त नाबूद कर दे। ए अल्लाह, उनका प्लान बनाने वालों को भी नेस्त नाबूद कर दे, उनके इशारों पर चलने वालों को भी नेस्त नाबूद कर दे। ए अल्लाह, तमाम दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। ए अल्लाह, आपकी ताकत ही उनको तबाह कर सकती है, बाकी हमारे बस में कोई नहीं है। ए अल्लाह, हमारे पास कोई जराई नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई क़ुव्वत नहीं है, और मेरे अल्लाह, बस इरादा तो करेगा, दुश्मन मिट सकता है, तबाह हो सकता है, एक लम्हे में तबाह बर्बाद हो सकता है। या अल्लाह, दुश्मन को तबाह बर्बाद करके मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन वालों की मदद फरमा, गज़ा वालों की मदद फरमा, हमास वालों की मदद फरमा। ए अल्लाह, गैब से उनकी मदद फरमा, रूहानी ताकत से उनको माला माल कर दे, आमाल सालेह की ताकत से उनको माला माल कर दे, उनकी ईमान में बरकत अता फरमा, उनकी ईमान में बरकत नसीब फरमा, उनकी ईमान में बरकत नसीब फरमा। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अल्लाह आंसू बहा सकते हैं। ए अल्लाह, रोने वाली नकल कर सकते हैं। अल्लाह, इस नकल को असल में बदल कर, या अल्लाह, तो पूरी गैबी ताकत उनके साथ अता करके उनको, या अल्लाह, उसके जरिए से दुश्मन को पाश पाश कर दे, दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह, सारी दुनिया के अंदर ईमान वालों की मदद फरमा। ए अल्लाह, हमारे कश्मीर और कश्मीर की हिफाजत फरमा। अल्लाह, बातिल स्कीमों को फेल कर दे, अल्लाह, बातिल आवाज़ों को बेअसर कर दे, अल्लाह, हक़ की आवाज़ों को बुलंद फरमा। ए अल्लाह, हमारे ये नौजवान अपने घर बार को छोड़ के आए हैं, तेरे दरबार में आए हैं, आराम को छोड़ के आए हैं। ए अल्लाह, हम अगर सही नीयत से आए हैं तब भी कबूल फरमा, अगर सिर्फ दिखलावे के लिए आए हैं फिर भी मेरे
मालिक इस दिखलावे को भी असल में बदल कर अल्लाह हमारे आने में बना दे। ए अल्लाह हमें कबूल फरमा, हमारे मांगने को कबूल फरमा, हमारी मांग को कबूल फरमा। ए अल्लाह अता कर दे, हर खैर अता कर दे, हर शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बीमारों को शिफाए कुलिया नसीब फरमा, जितने बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा। ए अल्लाह यहाँ जो बैठे बीमार हैं उनको शिफा दे दे, और जो घरों में बीमार हैं उनको शिफा दे दे। हमारे सारे कश्मीर के अंदर बल्कि सारी दुनिया के अंदर या अल्लाह जितने बीमार हैं ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों में मुब्तला है, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। सफर में, हाजर में, अस्पतालों में, घरों में अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। ए अल्लाह सबको शिफा दे दे, अल्लाह सबको शिफा कुलिया नसीब फरमा। अल्लाह जितने मक़रूज़ीन है अल्लाह उनके कर्जों की अदायगी का गैब से इंतजाम फरमा। अल्लाह सबको कर्जे उतरवा दे, अल्लाह गैब से मदद फरमा दे, गैब से मदद फरमा दे। जितने ताजर है अल्लाह इनकी तजारत में खैर बरकत नसीब फरमा, इनकी तजारत में खैर बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह इनको कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जितने बेरोजगार है उनको हलाल रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह हलाल रोजगार अता कर दे। पढ़ने वाले तलबा और तालिबात है या अल्लाह उनके इल्म में खैर और बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह उनके इल्म में तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह उनको कामयाबी नसीब फरमा। जिस मिशन पे वो चल रहे हैं उस मिशन पे उनको कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह दीन पर उनको साबित कदमी नसीब फरमा। उनके दुनिया में भी खैर और बरकत नसीब फरमा, उनके दीन में भी खैर और बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह ऐसे मौकों पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी है वो तमाम के तमाम खैर या अल्लाह यहाँ बैठने वालों को नसीब फरमा, महजूर नगर वालों को नसीब फरमा। घर घर में वो खैर नसीब फरमा। ए अल्लाह घर घर में वो खैर नसीब फरमा। मैं अल्लाह औरतों को भी वो खैर नसीब फरमा, मर्दों को भी वो खैर नसीब फरमा, बच्चों को भी वो खैर नसीब फरमा, नौजवानों को भी वो खैर नसीब फरमा, बुजुर्गों को भी वो खैर नसीब फरमा। हमारे सारे कश्मीर के घर घर में वो खैर नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे जितने साथी हमारे साथ भी तशरीफ लाए हैं, ए अल्लाह हमारे इन सारे साथियों को खैर से माला माल फरमा। ए अल्लाह तमाम शुरू आफात से इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इन हज़रात के ईमान में, इज्जत में, रिज़्क़ में, सहन में खैर बरकत नसीब फरमा। तमाम बैठने वालों को वो बरकत नसीब फरमा, हर खैर से माला माल फरमा। तमाम शुरू आफात से हिफाजत फरमा। या अल्लाह सारी दुनिया की मसाजिद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खुसूसन या अल्लाह जो हिंदुस्तान के जो मुसलमानों के साथ जो मामला हो रहा है, मसाजिद के साथ हो रहा है, मदारिस के साथ हो रहा है, या अल्लाह तो खैर से वहां के मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, हम सब के मसाजिद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातब की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे जितने ज़र्रात हैं उनकी हिफाजत फरमा, एक एक चीज की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जितने भी मदारिस की खिदमत गुजारे हैं इनको माला माल फरमा। ए अल्लाह इन हज़रात के ईमान में, इज्जत में, रिज़्क़ में, सेहत में खैर बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह जितनी खैर ये मांगते हैं इनको खैर से माला माल फरमा। इनकी दुनिया भी बेहतर बना, इनके सकरात भी बेहतर बना, इनकी कब्र भी बेहतर बना। मैं जब कब्र से उठे तो वो दिन भी इनके लिए बेहतर बना, और मैदान महशर का दिन भी इनके लिए बेहतर बना। या अल्लाह ये खिदमत गुजारे हैं इनको मैदान महशर में मेरे अल्लाह मुश्किलों पर बिठा दे। फुकरा की खिदमत गुजारों के या अल्लाह इनकी मदद फरमा, गरीबों और यतीमों की मदद करने वालों की मदद फरमा। ए अल्लाह अपने हमसायों की मदद करने वालों की मदद फरमा। जो जिस एतबार से जिसकी भी मदद कर रहा है, जहां भी कर रहा है, जिस बेकस बेसहारा को पूछ रहा है, अल्लाह तू उनकी दुनिया भी अच्छी बना, अल्लाह इनकी आखिरत भी अच्छी बना। मैदान महशर में अर्श अज़ीम का साया इनको नसीब फरमा। ए अल्लाह अर्श अज़ीम का साया नसीब फरमा। इनकी बरकत से वो दिन हमारे लिए भी मुबारक बना दे। अल्लाह अर्श अज़ीम का साया हमें भी नसीब कर दे। या अल्लाह हर खैर से माला माल कर दे। हमारे ये नौजवान है, मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी लाज रख ले। अल्लाह ए अल्लाह घरबार को छोड़ के आए हैं, बिस्तरों को छोड़ के आए हैं, आराम को छोड़ के आए हैं। कल दिन में उठना भी है बेचारों को, अपना काम काज भी करना है। ए अल्लाह फिर भी मेरे मालिक आपकी मोहब्बत में आए
हैं या आपके खौफ में आए हैं। ए अल्लाह दोनों सूरतें हैं, या आपकी मोहब्बत इनको लेके आई है या आपका खौफ लेके आया है। आपका खौफ लेके आया है तो फिर भी इबादत है, आपकी मोहब्बत लेके आई है तो फिर भी इबादत है। अल्लाह अल्लाह तो इनके आने को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा, इनके मांगने को कबूल फरमा। बड़े प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं, मासूम चेहरे बैठे हैं। अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई भी नहीं है, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं, हम बेसहारा है, बेसहारों के सहारा तू ही है। बस अल्लाह हम भी तेरे है, तू हमारा है। बस आज की रात तू हमारा बन जा, हमें अपना बनाकर या अल्लाह हमारी हर जरूरत को पूरा फरमा। किसके दिल में क्या तमन्ना होगी या अल्लाह की चाहत लेके बैठे होंगे। अल्लाह आप अपने बंदों से वाकिफ है। अल्लाह जिस के दिल में जो तमन्ना है अल्लाह इनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा, अल्लाह इनकी चाहत को पूरा फरमा, अल्लाह इनकी जरूरतों को पूरा फरमा, अल्लाह इनकी जरूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह हमें दुश्मन के हवाले न करना, हमें दुश्मन के नरक में न फंसाना। गैब से हमारी मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। मरने से पहले पहले या अल्लाह कोई काम हमसे ले ले। अभी तक हमने जिंदगियां ज़ाया की, हमने अवकात को ज़ाया किया, हमसे दीन का कोई काम ना हो सका। ओ अल्लाह मरने से पहले पहले कुछ करवा दे। अल्लाह हमने अपने बारे में सोचा, अपनी जिंदगी के संवारने में लगे, अपनी रातों और दिनों को संवारने में लगे, हमने अपनी आखिरत को खूबसूरत ना बनाया। हमसे ऐसा कोई काम करवा ले हमारी आखिर में निजात का जरिया बन जाए। या अल्लाह उसके लिए करने के लिए हमारे अंदर जज्बा पैदा कर दे, इखलास पैदा कर दे। या अल्लाह ये जान तेरी है, ये माल तेरा है, आपने जन्नत के बदले में खरीदा है। हम कैसे कह सकते हैं जान मेरी है, हम कैसे कह सकते हैं माल मेरा है। ये अतिये में आपने अता किया, ये अल्लाह ये अतिया हमें मिला है, अमानतन मिला है। हमें कोई हक नहीं है कहने का कि मेरे साथ ऐसा मामला क्यों हो गया। और मेरे मालिक सब कुछ आपका है, जैसा चाहे आप वैसा करे। अल्लाह हमें कोई इख्तियार नहीं है, हमारी जान को भी सही जगह इस्तेमाल कर दे, हमारे मालों को भी अपने रास्ते में कबूल फरमा, जान को भी अपने रास्ते में कबूल फरमा। जान और माल की अवकात के ज़ाया हो जाने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। हमारे अवकात को कीमती बना दे, हमारे मालों को कीमती बना दे, हमारी जानों को कीमती बना दे और कीमती जगह इस्लाम के लिए खर्च करने वाला बना दे। अल्लाह इस्तेमाल करने वाला बना दे, ज़ाया हो जाने से हमारी हिफाजत फरमा। आज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी है या रब्बिल आलमीन वो तमाम के तमाम खैर हम सबको नसीब फरमा। और जितनी शुरुआत से पनाह मांगी है हम सबको पनाह नसीब फरमा। आज की रात ये साथी जितनी दुआएं मांगे, ये सारी दुनिया में जितनी खैर मांगी जाए उस खैर में हम सबको हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह हम जो मांगेंगे सारी दुनिया के ईमान वालों को उसमें हिस्सा नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।